Hey guys, welcome to another episode of Expert Eye, and with me is Naresh, obviously. And today we are discussing this big news इस हफ्ते की जो कि है Coke has given its $4 billion account to WPP worldwide. So for the common person to understand what is WPP, WPP is an advertising and communications conglomerate, a network basically जो कि globally जिसकी प्रेजेंस है और उसके अंडर इंडिया में लाइक्स ऑफ नॉट जस्ट इन इंडिया बट लाइक्स ऑफ गिलवी JWT ग्रे ये सब आते हैं. तो बेसिकली दे आर गोइंग टू हैंडल कोक्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी for the coming year or for X many years. So let's hear it from Naresh. What does it mean for JWT in India, which is now Wonder Thompson? It handles Pepsi as well. So अभी वो कोक भी करने वाले हैं इंडिया में. तो what does it mean, Naresh? Your first thoughts? पता नहीं. So I don't know how the whole thing will spread out, because one thing is very clear: if you work for Pepsi, you don't work for Coke. If you work for Coke, you don't work for Pepsi. That is one thing that is very clear. So there is absolutely no way that a single outfit will work for both brands. This will not happen. Which means if JWT starts to work on Coke or any brand of Coke, they will have to let go of Pepsi, of Kurkure, of Lipton iced tea, and I think a collection of more brands that Pepsi owns. KFC, Pizza Hut, Taco Bell. So Pepsi का जो पूरा spread है इंडिया में is actually a lot more than just soft drinks. They are a very large restaurant company. Of course, they are food and beverages, right? So yes. So I'm trying to understand कि उस केस में वो लोग give up करेंगे या कैसे कोई एक किसी deal में ऐसे they will enter where they can handle both the accounts, because it's obviously a what do you say, it's a contradiction of sorts. It's a conflict. No, both won't happen. Both won't happen. और इंडिया में हुआ क्या है, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस पेप्सी हैज नॉट वर्कड विद इट्स ग्लोबल एजेंसीज. पेप्सी ग्लोबली काम करता है बीबीडीओ के साथ में. लार्ज चंक ऑफ पेप्सी इज विद बीबीडीओ इन मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स. इंडिया के अंदर बीबीडीओ के पास में 7up है और शायद 2-3 और छोटी मोटी ब्रांड्स है. बट मेरे ख्याल से काफी मेजर कंसोलिडेशन अब बीबीडीओ के साथ होगा. शायद कुछ हद तक आई थिंक एफसीबी उल्का के पास में काफी सारी चीजें जा सकती हैं, बिकॉज नेटवर्क के बाहर वही एक बचा हुआ है जिसके का कोक के साथ टाई अप नहीं होगा, बिकॉज जो नया WPP कोक डील है. Are you trying to say? Yeah, because if you look at the new alignment that has happened, I think so. I think the new alignment that has happened is what they've done is there is WPP as the lead agency. They have said that Dentsu would be the second agency. Correct. I read in the that. entire game, because Japan के अंदर वो Dentsu के साथ काम करते रहेंगे, and in India they do not want to give up on McCann, which is the agency that works a lot of Coke right now. So that basically makes it very difficult for Pepsi to keep finding new agencies. So why do you think Publicis network के अंदर शायद काफी आपका ये कहने का मतलब है कि JWT is ought to lose Pepsi, you are saying, if they 100%. Get Coke. Oh, interesting. 100%. Not only Pepsi, Kurkure, कितना loss? A brand they built from scratch. कितना loss? 100-125 करोड़ रुपए. और क्रिएटिव मत देखो, सिर्फ क्रिएटिव मत देखो. हम गलती यही करते हैं, वी सी क्रिएटिव. पूरा का पूरा वंडरमैन थॉमसन इज नॉट जस्ट क्रिएटिव, पूरा मीडिया जाएगा, विच इज अ लार्जर पार्ट ऑफ बिजनेस दैट दे हैंडल. जो पूरा माइंड शेयर नेटवर्क है जो मीडिया का हैंडल कर रहा है वो जाएगा, डेटा जाएगा, एनालिटिक्स जाएगा. सो काफी बिजनेस जो हम देखते नहीं है, जो विजिबल नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेटर है वो सब मूव करेगा. और ये अगले 2-3 महीने के अंदर आपको दिखना शुरू होगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बिग शेकअप. But tell me something. और इंडिया के अंदर तो WPP इज अ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट. इंडिया का I think 70% market share control करते हैं वो लोग. It's a very large company. Yeah, of course it is. But Naresh, tell me something. Coke कहीं ना कहीं Coke उसको compensate नहीं कर देगा उस loss को अगर Pepsi जाता है. मतलब don't you think they're going to get that kind of amount from Coke that they're okay letting go Pepsi? See, if I am the person running JWT or WPP companies in India, मेरे पास choice नहीं है.
सो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। अगर डिक्टाट आता है फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क कि आपके पास अब ये ब्रांड्स है और आपको यहाँ जाना है, तो आपके पास चॉइस नहीं है। कॉम्पनसेट करता है कि नहीं करता है तो बात की चॉइस है, वो तो आप बाद में देखोगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये तो गिवन है कि अकाउंट मूव करेगा, और कोक काफी बड़ा अकाउंट है, छोटा अकाउंट नहीं है। तो ये हाँ नहीं है कि पेप्सी गिव अप करके मेरे को कोई छोटा सा कोल्ड ड्रिंक अकाउंट हैंडल करना बट है, वो नहीं है। करेक्ट, सो इट वाज अ 1 year long pitch as we know, और अभी वो कल्मिनेट हुई है, एंड Publicis and IPG were in fray, and ये you are you telling me that WPP did not know that they might lose Pepsi? Oh, they knew. Oh, they knew. पूरी दुनिया को पता था. So the first agency to get knocked off the review process was Accenture Interactive. The consulting company Accenture, Okay. they actually own an agency, or they run an agency, interactive agency called Accenture Interactive. They were the first company to get knocked off the pitch. Ooh. And then the people who remained in the pitch were Dentsu, WPP, and Publicis. Acha. I don't know if you know, but Dentsu McGarry Bowen handles Coke in UK. Acha. Okay. So Okay. UK का Coke तो का उनका business, prior, large हाँ. part of UK So, Coke business is with Dentsu McGarry Bowen. So oh. ऐसा नहीं है कि Dentsu का पुराना relationship नहीं है, Dentsu का relationship है. One of the reasons so Dentsu why has they been all able were. to retain. Yeah. Absolutely. So Dentsu has been able to retain a large part of the relationship. Obviously, it's a very big win for WPP. Correct. तो उसमें एक Not a small एक win for pointer और WPP. है. There is this pointer which says that Publicis and IPG would play key roles in an open source creative model, which was expected to account for 1/3 of all marketing work. So Coca-Cola has said that in an official statement. What does it that mean? is where I don't know how the so वो मुझको नहीं पता कैसे गेम प्ले होगा. Leo Burnett, Saatchi and Saatchi, Publicis, will they handle a large part of Coke? Because Burnett के पास थोड़ा बहुत portion है Coke का, but वो इंडिया में है. In many other parts of the world, Burnett नहीं करता है Coke के साथ में काम. Which is why I said फायदा अगर किसी को होगा तो FCB का फायदा होगा, because उस नेटवर्क के पास में अभी नहीं है कुछ भी. So वो एक नेटवर्क है जिसका काफी फायदा हो सकता है, और पेप्सी का काफी पार्ट उधर मूव करेगा. But WPP has also said that it's going to make a new team called OpenX or something like that. What does that mean? तो वो WPP ऑलरेडी करता है ना. अगर आप देखो उनके पास एक एजेंसी है कॉल्ड टीम ब्लू, और या ब्लू हाइव. ब्लू हाइव हैंडल करता है फोर्ड का बिजनेस. अच्छा. और ब्लू हाइव अमेलगेमेशन है सारी एजेंसीज का. तो उनने क्या कर, क्रिएटिव्स उसके अंदर है, डेटा उसके अंदर है, मीडिया उसके अंदर है, एक्टिवेशन उसके अंदर है, डिजिटल उसके अंदर है. तो जितनी एजेंसीज हैं WPP की उसके अंदर से लेकर के उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, और उसको ब्लू हाइव बोलते हैं, जो फोर्ड का बिजनेस ग्लोबली हैंडल करती है. ये वही मॉडल है. अच्छा. वो सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अभी हुआ क्या है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस बहुत फ्रैगमेंटेड है. मीडिया कोई करता है, डिजिटल कोई और करता है, क्रिएटिव कोई और करता है, आउटडोर कोई और करता है, रेडियो कोई और करता है. तो ये सारे लोग अब एक साथ बैठेंगे, एक टीम होगी, सिंगुलर टीम लीड होगा. और पुराने जमाने में जैसे एजेंसीज होती थी, मेरे ख्याल से काफी समय पहले की बात है, मुझको नहीं पता आज की तारीख के लोगों को याद भी है कि नहीं याद है, बट पुराने जमाने में सब एक ही होते थे, अलग अलग नहीं होते थे. और हम जब जाकर के क्लाइंट से बात करते थे तो एजेंसी, क्रिएटिव, मीडिया, एक्टिवेशन, डिजिटल सब एक साथ जाके बात करते थे, अलग अलग लोग नहीं होते थे. अभी सब अलग अलग हो गया है. तो ये कोशिश है लोगों को वापस साथ लाने की. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग है आपने ये बताया, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने OpenX ऐसी कोई नया एजेंसी बना ली है, या नया कुछ उन्होंने नई कंपनी फॉर्म करने का सोच रहे हैं, टू नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद वंडा थॉमसन. अरे नहीं. नेटवर्क के अंदर अगर कोक है तो पेप्सी उस दरवाजे से नहीं घुसेगा अंदर. ये तो ग्लोबल है. And why do you ये think बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड्स है दोनों. ये बड़े इंटरेस्टिंग ब्रांड्स है दोनों. लोग जो पेप्सी को काम करते प्रॉब्लम हैं क्या होगी? अच्छा, पेप्सी को प्रॉब्लम क्या होगी ये बताओ, मतलब क्या प्रॉब्लम है उनको? कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं दोनों एक दूसरे के साथ में. नॉलेज फ्लोज, डेटा फ्लोज, टैक्टिक्स फ्लो. दिस इज एन अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव कैटेगरी, तो होने वाला ही नहीं है. We, for instance, work with Hindustan Coca-Cola Beverages, the bottling company. We are not allowed entry into any Pepsi business. Acha. Okay. So that is how closely they control how the brands work with each other. Interesting. और ये strategic roster of approved agencies क्या है, क्या होगा? That will enable Coke to tap professionals from a range of companies to contribute to creative projects.
I mean, this is their quote. तो वो ये हर देश के अंदर स्ट्रक्चर WPP का सेम नहीं है, अलग अलग है। WPP बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, उतना स्ट्रांग वो यूरोप में नहीं है, उतना स्ट्रांग वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं है। तो हर जगह पे कर क्या रहे हैं, वो लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बंच ऑफ एजेंसीज एंड क्रिएटिंग अ सिंगुलर टीम कोक व्हिच दे कॉल्ड OpenX। और उस तरह से वो सेट करेंगे टीम्स को। मेरे ख्याल से और 3-4 महीने लगेंगे बिफोर यू रियलाइज उसको किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन उस बिजनेस को चला रहा है। सो दैट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, but I think WPP in India will walk away with a very large chunk of business from Coke. I see. And what about and that is the bigger thing. Okay. And what do you think is the impact on professionals? उन लोगों के लिए एक कोक भी आ गया, पहले पेप्सी था ही, now they have to handle Coke also. Like, I know, I mean, we've been employees of an organization, right? So even we feel the load. कहीं ना कहीं insecurity भी होती है। अगर पेप्सी जाएगा तो क्या jobs भी जाएंगी? क्या लोगों को फर्क पड़ता है इस मूवमेंट से? मुझे लगता है नहीं होगा ऐसा कुछ। मुझे नहीं लगता है कि जॉब्स जाएंगी, मुझे नहीं लगता है कि लोगों की नौकरियों पे इतना खतरा है, क्योंकि साइज ऑफ बिजनेस छोटा नहीं है कोक का भी। और ये नॉलेज पूल उन लोगों का जिनने दोनों ब्रांड्स पे काम किया वो बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा। इसलिए जितने लोगों ने पेप्सी पे काम किया है उनका वैल्यू है कोक पे काम करने के लिए भी। अब वो कितने लोग पेप्सी बिजनेस के साथ में उन नई एजेंसीज में जाएंगे जहां पेप्सी का बिजनेस जा रहा है, या इसी एजेंसी में रहेंगे जहां कोक का बिजनेस आ रहा है, ये कुछ चीजें हैं, वो देखने से ही मालूम पड़ेगा फ्यूचर में क्या होता है। बट होता यही है, कुछ लोग बड़े डीपली इन्वॉल्व होंगे पेप्सी के साथ में। पेप्सी की कोशिश ये रहेगी कि वो ब्रांड के साथ मूव करें, और जो नया टीम सेटअप हो रहा है जहां पे भी जिस भी एजेंसी में, दे गो देयर। बट इट्स अ ग्लोबल थिंग। सो ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये नहीं है कि ये इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में है, ये हर देश में है। So you saying that in 200 countries where WPP is getting Coke, they would have to, wherever they have Pepsi, there will be a shake-up. Yes. Interesting. और WPP ने कभी भी कोक के साथ काम नहीं किया है, so this is like the first time ever types. So ये तो actually a very big thing. Why do you think Coke chose WPP despite knowing, like, दोनों चीजें हैं, एक तो हाँ क्योंकि वो पेप्सी का है, पेप्सी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, and despite knowing कि वो पेप्सी के साथ काम कर रहे हैं, is that the reason why? I mean, you think that turned in their favor? No, the call is much more from the US and UK markets or Europe markets. India has not played such a key role in that decision. और इंडिया के अंदर पेप्सी का बड़ा सारा बिजनेस WPP के पास है, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर काफी सारा पेप्सी का बिजनेस BBDO के पास है। ओके। और वो नहीं काम करते WPP एजेंसीज के साथ में बहुत ज्यादा। इंडिया में भी उनका WPP के साथ में है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। एंड कोशिश उनकी यही रहती है, यहाँ इंडिया में दे ऑल्सो वर्क विद अदर एजेंसीज। So Pizza Hut, for instance, works with Creative Land Asia, which is an independent agency. Okay. I'm sure there are more agencies like that, जो independent agencies हैं, network agencies नहीं है, और individual businesses handle कर रही हैं। Right. तो वो काफी fragmented हो जाता है। See, over a period of time, as you start to grow, every manager takes a call of saying, ठीक है, मुझे network के पास नहीं जाना, मुझे कहीं और जाना है, क्योंकि मुझे better service मिल रही है किसी और agency से। Okay. But वो consolidation Pepsi के end पे भी होगा, because now they are re-looking at how they would work across the globe and across the function. So ये दोनों चीजें I think कुछ हद तक advertising के अंदर, at least in India, काफी उठाक पटाक चहल पहल होगी। अच्छा। Do you also think it speaks quite a bit about the fact that India is a big market for Coke, and that is one of the reasons why they have done this? India is a big market for both Coke and Pepsi. It's not a small market, so तो फर्क पड़ेगा ही। But I don't think overall decision के अंदर इंडिया का उतना से रहा है। अच्छा। Overall decision मतलब UK, China, Europe, these are very very large markets. Okay, cool. And you think Gen Z shift करने से Coke will be coming up with new offerings, new strategies? Do they plan to make a dent in some way, changing their agency in some way, and that is one of the reasons why they have done this? I would assume that they're looking at a new way of creating brand communication, and which is why they've gone to a singular agency and
तो कुछ तो रीजन रहा ही होगा. OpenX comes from open happiness, I think. So I don't see how they are changing the entire brand positioning. कम से कम जो एजेंसी का नाम है वो ब्रांड पोजीशन से आ रहा है. बट इंटरेस्टिंग होगा देखना ये कहाँ Interesting. जाता है, क्या हाँ, होता है, कैसे होता है. I agree. It will be interesting to watch. देखते Yeah. हैं as you said उठक पटक क्या होने वाली है एजेंसी बिल्कुल में. बिल्कुल. What's the buzzword? Like, did you ये discuss it with some people around you? नो आई थिंक अभी तक लोगों को हवा है नहीं कि होगा क्या. Ah, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी हाउ द होल थिंग मूव्स अराउंड. cool. ये न्यूज़ तो अभी ब्रेक हुई है. जब भी ब्रेक होगी तो आप मेरे को ब्रेक कर देना. जो भी आपके बजवर्ड बिल्कुल रहेगा एजेंसी बिल्कुल में, बिल्कुल जो भी आपकी बातचीत बिल्कुल रहेगी, क्लोज इंडोर, क्या कहते हैं, क्लोज डोर बिल्कुल कॉन्वर्सेशंस, बिल्कुल मुझे आप जरूर बताना. एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सपर्ट आई में आके सब लोगों को बता दूंगी. कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल. Thank you so much, Naresh, for joining me Okay. yet again on this Friday. Thank you guys for watching this episode of Expert. I keep watching. I know you're liking these videos, so please subscribe to my YouTube. Why don't you do it? Bye. Bye.